ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈ صاحب, میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, وہ سوال ہر عام آدمی کا اس وقت جو ڈسکس ہو رہا ہے ہر جگہ پہ, اس کے بعد پھر ہم جنگ کی صورتحال پہ بھی آتے ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں, لوگ یہ کہتے ہیں, یہ سوال کرتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے گی تو کیا پیٹرول کی قیمتیں واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں گی؟ کیا ڈیزل کی قیمتیں, جس کا امپیکٹ سب سے زیادہ آتا ہے کہ ٹریولنگ کے اندر ڈیزل آپ کا استعمال ہو رہا ہے, اس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی؟ اور کیا پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوں گی تو جو مہنگائی ہوئی ہے, کیا وہ واپس چیزیں اپنی اصلی حالت میں, اپنی اصلی قیمت پہ واپس آ جائیں گی؟ ساما، ماضی کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ کیا پہلے واپس آئی؟ کبھی نہیں. اگر واپس آئیں گی تو یہ 458 روپے 40 پیسے ہے نا, تو 40 پیسے کم ہو جائے گا, 458 روپے رہ جائے گا. دوسری بات یہ ہے, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, حکومت کچھ نہیں کرے گی. ایسے شریف صاحب نے جو فرمایا نا, رائٹ می ڈاؤن, حکومت ول ناٹ ڈو اینی تھنگ. لیکن اس حکومت نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ پیپل الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. کہ میں آپ کو آج انہوں نے اس چیز پہ مہر لگا دی ہے کہ دس از ناٹ پیپل الیکٹڈ گورنمنٹ. اور جو اس کے اوپر جتنے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں, جو لوگ کہتے رہے ہیں, وہ بالکل صحیح ہے 100%. بیکاز دے نو دیٹ دے ول کم, دے ہیو ان دیئر مائنڈ کہ دے ول اگین کم ٹو پاور. جو پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح الیکشن ہوتے ہیں, ان کے رزلٹ جو ہوتے ہیں وہ کس طرح رزلٹ آتے ہیں. آپ کے الیکشن کمیشن پہ کون کون سے الزامات نہیں لگے. سو دے آر لوکنگ ایٹ دیٹ اینگل. سو دے آر ناٹ بادرڈ کہ یہ عوام کیا ہے یا عوام کا انٹرسٹ کیا ہے. آپ ایک وزیر خزانہ ایک بینکر کو لا کے بٹھالتے ہیں, اس بینکر کا کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے خزانے کو مینٹین, اور بینک کو مینٹین کرنا, بینک کو چلانا اور خزانے کو چلانا بہت بڑا فرق ہے. بینک آپ انٹرنلی چلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پیسوں کے اوپر, لوگ پیسہ جمع کرا رہے ہوتے ہیں, اس سے آپ بینک کے پریزیڈنٹ بن کے اس میں پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں. یہاں جو ہوتا ہے آپ کو ٹیکس کلیکٹ کرنا پڑتا ہے لوگوں سے, اس کے لیے آپ شارٹ وے ڈھونڈتے ہیں. شارٹ وے کیا یہ ہے؟ شارٹ وے دنیا میں کسی بھی ملک میں پیٹرول کو ریونیو کلیکشن کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا. آپ کسی ملک کا بجٹ اٹھا کے پڑھ لیں, پیٹرول از ناٹ یوزڈ. پیٹرول کے اوپر جو پرائزز ہیں دے آر ایڈجسٹڈ اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل مارکیٹ. انٹرنیشنل مارکیٹ پہ پیٹرول بڑھتا ہے تو آپ بڑھا دیتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ پہ پیٹرول گھٹتا ہے تو آپ گھٹا دیتے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں یہ پریکٹس فالو نہیں کی جاتی. یہاں پہ پیٹرول کو ریونیو جنریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اکانومسٹ نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ ہیز اے ریونیو شارٹ فال, اس لیے کہ انہوں نے ریونیو کلیکشن کرنے کے لیے ایک طبقے کو چنا ہوا ہے, وہ ہے تنخواہ دار طبقہ. اس کے اوپر آپ 60% لگا دیں, پھر اس نے دینا ہے بیکاز ان کی سیلری کٹ آ جانا ہے. لیکن اس کے بعد جو آپ نے اس کو وائبرنٹلی اس کو آگے بڑھانا ہے, کیا وہ آگے بڑھتا ہے؟ آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا. یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں, کیا یہ عوام کے فائدے میں؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیموکریسی میں پیپل الیکٹڈ ہیں, تو یو شوڈ بی مور کنسرنڈ اباؤٹ پیپل الیکٹڈ. دے آر مور کنسرنڈ ہے آئی ایم ایف الیکٹڈ, بیکاز آئی ایم ایف جو ان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ اگر میری بات سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ اپنی ٹیلی ویژن کی کلپس اس دن کی, جس دن پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی, اس سے ایک دن پہلے کی آپ کلپ نکال کے دیکھ لیے گا. آئی ایم ایف ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ آپ لیوی ختم کریں, اس کے اگلے دن پیٹرول کی پرائزز بڑھ گئی. اس پیٹرول کی پرائزز بڑھی جو پرانی قیمت پہ خریدا گیا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ بدنیتی کہاں پر ہے؟ دوسری بات یہ, آپ تو ٹیلی ویژن چینل کے لوگ ہیں نا, کل کو اپنے 2 کیمرے بھیج دیجیے گا, لبرٹی میں 2 کیمرے بھیج دیجیے گا, مال روڈ پہ 2 کیمرے بھیج دیجیے گا اسکولوں کے سامنے. آپ اس میں دیکھیں گے کہ کتنی گرین نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ہیں جو استعمال ہو رہی ہوں گی بیگمات کو لے جانے کے لیے, بچوں کو لے جانے کے لیے, باوجود اس کے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے کرٹیل کیا. پھر کبھی جب کوئی وی آئی پی آتا ہے تو آپ دیکھیے پولیس کو ایک کارنر سے جو دوسرے کارنر سے ڈپلائی کیا جاتا ہے, وہ جو پولیس فورس ہے وہ بیچاری پیدل چل کے تو نہیں آتی نا. تو آپ نے, اگر آپ کو پتا ہے کہ بھئی اتنی پیٹرول کی شارٹ ہے, تو یو کرٹیل یور وزٹ. آپ اپنے آپ کو اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کر کے رکھیں. اس سے پہلے جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب دہشت گردی کا بہت تھریٹ زیادہ تھا, تو بہت سارے ایسے پروجیکٹ تھے جن کا افتتاح جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ربن کاٹ کے کیا جاتا تھا. تو بات یہ ہے کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیے, میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, کیا جو حکومت کے خواص ہیں وہ اس مہم میں شامل ہیں, اس چیلنج میں شامل ہیں, جو چیلنج پاکستان کے اوپر یہ لوگ امپوز کر رہے ہیں پیٹرول پرائزز کی صورت میں؟ لڑائی کہیں ہو رہی ہے. پی این ایس سی آپ کے شپ ہیں, وہ آپ کا پیٹرول لے کے آ رہے ہیں جو گورنمنٹ آن شپ ہیں.
PNSC کے فلیگ کے اندر چیزیں لوڈ ہو کے آ رہی ہیں. اور ابھی حامد مشرقی صاحب نے بتایا کہ جی سعودی عرب جو ہے وہ تو آپ کو پرانی قیمت پہ پیٹرول دینے کے لیے تیار. تو بھائی جان اگر یہ تمام چیزیں اسامہ ہو رہی ہیں تو آپ مجھے بتائیے کون سی جسٹیفیکیشن ہے جس سے آپ 458 روپے پہ لے کے گئے؟ ریونیو کلیکشن شارٹ فال, اس کا کیا اس شارٹ فال کا ایفیکٹ آپ اس ڈالیں گے پاکستان میں جو ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہے. سر یہ اس میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی اتنی دیکھیے نا اسامہ, اتنی انکم ہو تو آپ ٹیکس دیں گے. پاکستان کے بہت مطلب 50% لوگ ہیں جن کی اتنی انکم ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیکس دیں, تو آپ ان کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں یار. اچھا نہیں سر, ایک منٹ سر, ایک اور بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا, ایک دو چیزیں صرف آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا, نظر دلانا چاہوں گا آپ کی اس طرف. ابھی جو کیلکولیشن بتائی ہیں نا کیسر بھائی نے, 6 کروڑ 7 کروڑ آپ نے کہا ہے جی لیٹر جو ہے وہ پر ڈے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. میں نے ہلکی سی کیلکولیشن نکالی ہے تو اس جو دیہڑی لگی ہے نا اس کے اندر وہ 12-13 ارب پر ڈے کی لگ رہی ہے. تو آگے اندازہ کر لیں کہ مہینہ چلتا ہے اگر یہ تو آپ 3 کھرب 60 ارب 1 ارب سا اندازہ. اچھا اب آپ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, ابھی آج کل انہوں نے ایک وہ پیش کیا ہے, تجویز پیش کی ہے کہ جو یوٹیوب کے اوپر ٹیکس ہے وہ 1000 ویوز کے اوپر 195 روپے لگایا جائے. تو اس کی میں آپ کو ایک رف سی کیلکولیشن بتاتا ہوں کہ یوٹیوب پہ اگر کوئی بندہ پیسے کما رہا ہے تو اس کو 80 روپے ملیں گے اور 195 روپے حکومت کو ملیں گے. اور ویوز کے اوپر جو ہے وہ چینل مونٹائز ہے یا نہیں ہے وہ اس کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے. یعنی اتنے یہ آپ کہہ لیجئے کہ لیک آف انفارمیشن, اور وہ کسی نے کہہ دیا کہ جی بڑا پیسہ آ رہا ہے انفلوئنسرز کے پاس, یوٹیوبرز کے پاس, تو ان کو فٹافٹ جو ہے وہ ٹیکس ڈٹ کے اندر لے کے آئے, جس کی کوئی کیلکولیشن کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ اسامہ صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا جی کہ دیکھیے وہ حکومت جس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگلی الیکشن میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, وہ پیپل فرینڈلی ہوتی ہے. میری بات یاد رکھیے گا. اور جن کو یہ ڈر نہیں, جن کو شیورٹی ہوتی ہے یا وہ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اگلی دفعہ بھی آنا ہے, they are never people friendly. اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا. بادشاہت ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. کیسے شریف صاحب چلیں بہتر ہو گیا, جنگ پہ جانے سے پہلے میں آپ سے جاننا بھی چاہ رہا تھا, اپوزیشن کے ساتھ مل کے کچھ کریں گے, پاکستان تحریک انصاف نے APC بلوائی, جائیں گے اس کے اندر, اور گین کیا ہوگا, کیونکہ آپ کا دھرنا بہت 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 مشہور دھرنا ہے آپ کا, اور آپ کا احتجاج جو ہے, تو آپ اگر سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں تو کیا کچھ بہتری ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے, کچھ پریشر جو ہے وہ اتنا آئے گا حکومت پہ, یا جو بات بریگیڈ صاحب کر رہے ہیں کہ ان کو کیا فرق پڑنا ہے, ان کو پتہ ہے نیکسٹ ٹائم بھی ہم نے آ جانا ہے. دیکھیں یہ ہم آنے کی کوشش نہیں کر رہے, بلکہ آج امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کال پہ پورے ملک میں جو تحریک کا آغاز ہوا ہے, احتجاج ہوا ہے, لاہور میں بھی مار روڈ پر احتجاج ہوا, ملتان روڈ پہ خود انہوں نے بہت بڑے احتجاج سے جو ہے وہ خطاب کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ, میں بریگیڈیئر غضنفر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو رویہ ہے یہ بالکل اسی وجہ سے ہے, لیکن وہ وقت جو ہے وہ قریب ہے کہ جب عوام کی عدالت میں ان کا پرفارمنس آڈٹ ہوگا انشاءاللہ. لوگ ان کو ان کی پرفارمنس جو ہے ان کے منہ پر ماریں گے, ان کے دعوے, ان کے اعلانات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکمرانوں کے جھوٹ بولنے پہ, وزراء کے جھوٹ بولنے پہ, MNA MPA کے جھوٹ بولنے پہ ٹیکس لگا دیا جائے تو پاکستان کا شاید سارا قرضہ جو ہے وہ کچھ سالوں میں اتر جائے. یعنی اتنا انہوں نے عوام کے سامنے غلط بیانی کی ہے, سبز باغ دکھائے ہیں, بڑے بڑے دعوے کیے ہیں, اعلانات کیے ہیں, تو ہم بالکل اس کا, ان کی پرفارمنس کا بھی آڈٹ کریں گے. انہوں نے جو اپنے منشور میں وعدے, اعلانات اور دعوے کیے ہوئے ہیں کہ یہ آ کے ہم ڈیلیور کریں گے, اس کا بھی بالکل عوام کو یاد بھی ہے, یاد کروائیں گے بھی. اور پرامن طریقے سے مزاحمت کی یہ جو تحریک ہے جس کو لیڈ کریں گے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب. میں آپ کو بریگیڈیئر غضنفر صاحب کو, جناب مشرقی صاحب کو یہ یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی اس عوام کا مقدمہ لڑے گی. یہ 25 کروڑ عوام جو ہے یہ کوئی لاوارث یتیم عوام نہیں ہے. جماعت اسلامی کا اس کے ساتھ اتحاد ہے. جماعت اسلامی اس عوام کا کیس عدالتوں میں بھی لڑے گی, چوکوں اور چوراہوں میں بھی لڑے گی, اور پرامن طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ان کو مجبور کریں گے کہ یہ اپنے ظالمانہ, وحشیانہ اور اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ واپس لیں, اور ریئلسٹک بنیادوں پہ جو ہے اس ملک کو لے کر آگے چلیں, اور ہر دفعہ جو ہے وہ عوام سے قربانی نہ مانگیں, بلکہ اپنے للے تللے, اپنے پروٹوکولز, اپنی جو چیزیں
सेटल हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, जिनको बेहतर किया जा सकता है, वो जहाज़ का कोई मसला हो, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों का कोई मामला हो, ये करें ना। जिस तरह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि 1300 सीसी गाड़ी से बड़ी गाड़ी ना इस्तेमाल करें, काबिल अमल तजवीज़ है। जमात इस्लामी ने कराची के अंदर अपने टाउन्स में इस चीज़ को लागू किया है कि हमारा कोई भी मुंतखब नुमाइंदा जो है वो सरकारी गाड़ी और फ्यूल और इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेगा। ये अवाम की अमानत है। अवाम जो है वो गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, अपनी बुनियादी ज़रूरियात नहीं पूरी कर पा रही, अपने बच्चों की तालीम, सेहत और अपने जो खाने पीने के अखराजात हैं, अद्वियात के अखराजात हैं, वो उससे पूरे नहीं हो रहे। और आटा जो है कभी आसमान पे चला जाता है, कभी चीनी गुम हो जाती है। मैं उन सारे मसाइल पे बात नहीं कर रहा ना। तो ये देखें ना, लाहौर की अगर हम बात करें तो लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि 80% लोग जो हैं वो लोकल ट्रांसपोर्ट से महरूम है। और मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं जी कि वो तो हम फ्री कर देंगे लोगों को। आप बहुत बड़ा कमाल करेंगे। 20 और 15% लोग मान लें कि फ्री सफ़र कर लें, बाकी 80% लोग जो हैं उनकी अप्रोच से, उनकी रेंज से बाहर है। कोई इन ड्राइव करके इस्तेमाल करना, कोई कैब इस्तेमाल करना, कोई रिक्शा इस्तेमाल करना, कोई ट्रांसपोर्ट का लाहौर में निज़ाम नहीं है। पूरा पंजाब जो है इसी चीज़ का शिकार है। बुनियादी ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट, अद्वियात के खर्चे। मेरे दोस्त हैं रिजवान न्याजी साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी मिसेज और बेटा बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। यकीन जाने कि मैंने उनका अखराजात का कल थोड़ा सा देखा तो मैं हैरान हो गया कि गोया खुदा न खास्ता एक दरमियाने दर्जे के हॉस्पिटल में वो कोई अमेरिका इलाज करवा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब उनको अपनी चीज़ों के लाले पड़े हुए हैं कि लाखों रुपए का रोज़ाना का खर्चा है। आप रहते कहाँ पे हैं? आप बात किस अवाम की कर रहे हैं? अवाम तो 2 वक्त के नवाले से तंग है। जिस तरह आज जल्जला आया, मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला से डर जाएं। अल्लाह ताला के हाँ हमने सब ने ये जवाब देना है। ये इक़्तिदार जैसे तैसे आपको मिला है, आपको दिया गया है, आप इसके हकदार नहीं थे, जो आपको दे दिया गया है। तो आपने यहाँ भी जवाब देना है इंशाल्लाह। और अल्लाह के हाँ आपसे इन तमाम मामलात पर पूछगिछ होगी। यही एक मुसलमान का तसव्वुर होना चाहिए और यही असल में तसव्वुर होता है तो चीज़ें जो है वो ठीक होती हैं और आगे बढ़ती हैं। आखिरी बात जो मैं यहाँ अभी उसमें करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ, अवाम से कहना चाहता हूँ कि वक्त आ गया है, पुरअमन तरीके से अपने हक़ के लिए निकलें। और जमात इस्लामी की जो तहरीक है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में, उसका साथ दें। मैं तमाम सियासी जमातों के कारकुनान को भी कह रहा हूँ, उनकी लीडरशिप से भी कह रहा हूँ कि खुदारा पाकिस्तान के लिए जो है हमें अपने मुल्क के लिए, अपने वतन अजीज़ के लिए, अपनी आवाम के लिए ये पॉजिटिव रोल प्ले करना है कि हमने पुरअमन तरीके से इन हुक्मरानों को मजबूर करना है कि ये अपने इस तरह के ज़ालमाना वहशियाना फ़ैसले जो हैं वो वापस। बिल्कुल सही है हामिद साहब। मैं सिर्फ आपसे जो सवाल मैंने पहले किया था कि करंट सिचुएशन क्या देख रहे हैं, जंग ख़त्म होती हुई, मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र आएंगे? बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक छोटा सा जुमला कहूंगा कि मैंने 3 दिन पहले एक चैनल पे कहा, मुझसे पूछा गया कि आवाम को गवर्नमेंट कैसे रिलीफ दे सकती है। तो मैंने सिर्फ एक बात कही कि खुदा गवर्नमेंट मजीद तकलीफ ना दे तो यही बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट आज जहां पर जिस अंदाज में आवाम को तकलीफ दी जा रही है महंगाई की शक्ल में, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को खुद इस पे फौरी तौर पर सोचना होगा और कोई ना कोई हल निकालना होगा। वरना बिल्कुल जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, कैसर साहब कह रहे हैं, अवाम का जो रिएक्शन है वो बड़ा खतरनाक होगा। अब एक बात मैं आपको बताता चलूं, इंटरनेशनली सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। देखिए कल सदर ट्रंप ने अपने आर्मी चीफ को बरतरफ किया है और जिस अंदाज में उन्होंने उसको जॉर्ज रैंडी को बरतरफ किया है तो उसके अंदर एक बात बड़ी खुल के सामने आई है कि पेंटागन में और सदर ट्रंप में बड़े वाज़ेह इख्तिलाफात हैं अमरीकी फौजें ईरान में उतारने के हवाले से, क्योंकि तमाम कैलकुलेशंस ये कहती हैं कि अगर ग्राउंड पर ट्रूप्स भेजे गए यानी फौजें उतारी गई तो उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। और कोई भी आर्मी चीफ हो, कोई भी सिपा सलार हो, वो किसी भी हालत में चाहे दुनिया में किसी भी मुल्क का हो, जब उसकी जंगी हिकमत अमली और कैलकुलेशन ये कह रही हो कि इस जंग में घाटे के सिवा कुछ नहीं और इस जंग में फौजें उतार के तबाही होगी, वो कभी भी एग्री नहीं होगा। अब जो जंग के वजीर हैं पीट
हाँ, पीट हेगसेथ, वो जो हैं वो बड़ा अब वो एक और आर्मी चीफ डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, जो कि उनको उनकी मर्जी से फौजें फौरी तौर पर डिप्लॉय करने की बात को एटलीस्ट एग्री करें ऑन अ स्ट्रेटेजी बेस। एक चीज और है, वो ये कि अभी खबर आ रही है कि अमेरिका की कैबिनेट के अंदर बहुत सारी और तब्दीलियां होंगी। उससे पहले उन्होंने अपनी जो मशीर दिफा है उसको भी हटा दिया है। बात ये है कि अमेरिका की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर सख्त इख्तलाफात हैं अमेरिका में इस जंग के हवाले से। वहीं पर ईरान जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से भरपूर अंदाज से मुज़ाहमत कर रहा है। ईरान के ऊपर ये जो दबाव डाला गया बहुत सारे अंदाज में, आबना हरमुज के हवाले से और इस हवाले से कि जी वो बाकी जो अरब ममालिक पर अटैक कर रहा है उसको ख़त्म करे, उस हवाले से ईरान की तरफ से बार बार ये वजाहत आ रही है और उसको उन्होंने कंट्रोल भी किया हुआ है कि एक तो ये कि ईरान की तरफ से किसी भी अरब मुल्क की सिविलियन पर कोई मिसाइल नहीं दागा जाता, बल्कि अगर कोई मिसाइल आया है तो वो इसराइल की तरफ से आया है धोखाधड़ी के लिए और उसका इल्जाम ईरान पर लगाया जा रहा है, चाहे वो सऊदी अरब की आरामको हो या मुत्तहिदा अरब अमारात की कुछ होटल्स या कुछ ऐसी जगह हो। एक चीज बड़ी समझने वाली है, वो ये है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात की बात हो रही है और कोशिश पाकिस्तान की बेहतरीन कोशिश है, मतलब डिप्लोमेटिकली ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सक्सेस है कि पाकिस्तान को एक रोल मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका की तरफ से जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि एक तरफ से बमबारी की जा रही है, इसराइल की हमायत की जा रही है। लेबनान में 2000 के करीब लोगों को शहीद कर दिया गया है, 15 से 20 लाख लोग जो हैं वो उनको डिस्प्लेस कर दिया गया है, वो नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो जंग बंदी की तरफ अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही जब तक अमेरिका जो है वो प्रॉपर्ली उसको स्टेप नहीं लेगा। लेकिन एक आखिरी बात बताता चलूं कि अगर कोशिश की गई कि ईरान के ऊपर फौजें उतारी जाएं तो फिर वो बाबुल मंदब अगर बंद हो गया, और बाबुल मंदब पे हूतीस ने पूरी स्ट्रेटेजी डिफाइन कर दी है, बल्कि उन्होंने टेस्टिंग के तौर पे कुछ जहाजों के रास्ते जबरदस्ती चेंज भी करवाए हैं। उससे ये साबित हो रहा है कि बाबुल मंदब पे हूतीस का बहुत कंट्रोल है, और बाबुल मंदब भी कोई इतनी बड़ा वो समंदर का 32 माइल्स रेडियस का इलाका है, जिसको वो रेडियस में 32 माइल की एक पट्टी है जिसको उन्होंने कंट्रोल करना है। और ये जो आपने हुर्मुज है ये 21 माइल्स है, सो इतनी बड़ी नहीं है कि जिसको वो हूतीस जो है वो डिस्टर्ब ना कर सकें। सो अमेरिका को, अरब कंट्रीज को, सबको ये सोचना होगा कि अमेरिका के ऊपर अब इसराइल के ऊपर दबाव डाला जाए इस जंग को रोकने के लिए, क्योंकि अग्रेसर वो है, जंग उसने शुरू की है, जंग का अभी तक उसकी तरफ से तबाही की बात है। ईरान तो रिटेलिएट कर रहा है, जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है, और ईरान ने दुनिया को हैरान किया है अपनी जवाबी कार्रवाइयों और जवाबी हिकमत अमली के हवाले से। सूरत हाल जो है वो ना तो सदर ट्रंप के लिए अच्छी है, फेस सेविंग लेना चाह रहे हैं लेकिन जीत के नाम पे लेना चाह रहे हैं, जीत के नाम पे सदर ट्रंप को फेस सेविंग नहीं मिलेगी, बल्कि अमेरिका जो है वो मजीद दलदल में धंसता चला जाएगा। ये खुद सोचना होगा, अमरीकी अवाम के अंदर इस जंग की हमायत अब सिर्फ 6% रह गई है। 68% अमेरिकन समझते हैं कि सदर ट्रंप को खुद नहीं पता कि ये जंग खत्म कैसे करनी है। 66% अमरीकी ये समझते हैं कि अब सदर ट्रंप सदर रहने के अहल नहीं रहे। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ये बात आ रही है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस में और प्रेसिडेंट ट्रंप में इख्तिलाफात हैं, और जेडी वैंस जो हैं वो हो सकता है कि सदर ट्रंप के मुआवजे की बात कर दें। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सूरत हाल खतरनाक है। पाकिस्तान को अपना रोल बड़ी संभल के अदा करना है। पाकिस्तान का रोल बड़ा क्रिटिकल का है। सबसे बड़ा क्रिटिकल रोल यही है कि पाकिस्तान हर हालत में अरब ममालिक को, जिस तरह हमने खुशस्लूबी से रोका हुआ है इस जंग का हिस्सा ना बनने का, इसी की कंटिन्यूटी अगर पाकिस्तान कर ले तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताइएगा कि मुख्तलिफ तरह की पेशिंगोइयाँ की जा रही हैं कि जंग, छोटी मोटी जंगें 2 साल तक मज़ीद चलती, इसी की कंटिन्यूटी में चलती रहेंगी। अभी तो सिर्फ जो है वो ये जो जंग देखी है ये समझें कि बिल्कुल 2% है, असल जंग तो अभी शुरू होनी है। सर, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ज़ाहिर है कि आप दिफाई एतबार से अगर मैं कहूँ कि आप एक मुस्तनद आपकी बात है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सिलसिला को रुकता हुआ नज़र आ रहा है, या आप भी समझते हैं कि ये इसी तरह से मज़ीद ये जंग जो है वो बढ़ेगी, और क्या दुनिया मुतहम्मिल हो सकती है? सर, असल में पाकिस्तान ने जो रोल उठाया है ना, या पाकिस्तान ने, आप ये याद रखिएगा कि तारीख को अगर पढ़ेंगे तो उसमें मिडल ईस्ट को जब भी मिडल ईस्ट के बारे में फैसला किया गया है, चाहे उसको डिवाइड किया गया या जो कुछ किया गया, वो तमाम का तमाम यूरोपियन एग्रीमेंट्स के जरिए हुआ है। बैलफोर एग्रीमेंट देख लें, पेरिस एग्रीमेंट देख लें,
सिस्को एग्रीमेंट देख लें, तमाम की तमाम तागुनी ताकतें या सहूनी ताकतें थी जिन्होंने मिडल ईस्ट के फैद। इस दफ़ा पहली दफ़ा एक चीज़ आपको सामने आई है कि मिडल ईस्ट के बारे में एक 3 इस्लामी ममालिक, उनका रोल, और उसमें पाकिस्तान का प्रीडोमिनेंट रोल आ रहा है। इस रोल को प्ले करते हुए मैं समझता हूँ पाकिस्तान को सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, जैसे अभी मशकी साहब कह रहे थे, अगर अल जजीरा में पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के बारे में एक रिपोर्ट चली है और ये प्रोजेक्शन ये जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट क्या परफॉर्म कर रही है अपने अवाम के साथ, तो वो पाकिस्तान के रोल के बारे में कोई अच्छा तासुर नहीं डेवलप होने देगी। पाकिस्तान एक बड़े डेलिकेट पाकिस्तान ने काम उठाया है, एक बड़ा नाजुक काम है, जिसे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि खलीजी ममालिक को भी सेटिस्फाई करें, उसके साथ ईरान के साथ भी आप रप्रोशमा रखें। चाइना इसके अंदर, चाइना ने बहुत अपना इंटरेस्ट शो किया है, और अगर आप 5 पॉइंट एग्रीमेंट जो पढ़े, जो 5 पॉइंट अनाउंसमेंट जो आई है, उसके अंदर आखिरी जो वो कहता है कि यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए चाइना ये चाह रहा है, गालिबन मैंने उससे ये नतीजा किया है कि चाइना ये चाह रहा है कि P5 के जो ममालिक है, जिसमें अमेरिका को तो निकाल दें, P4 जो हैं वो सामने आ जाएं और वो मिलके चाइना के साथ मिलके कोई गारंटी दे दें ट्रम्प की, जैसे ईरान कहता है कि किसी को गारंटर होना चाहिए। अगर वो चीज़ फीजेबल हो जाती है तो वॉर अगर ये रुकती है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि छोटी मोटी वॉर जो है वो दुनिया में वॉर्स तो चलती रही हैं। अभी आपने देखिए, अगर आप अमेरिका का हिसाब किताब निकाल लेंगे तो आपको वियतनाम से लेके अभी तक 60 जंगें हैं जो कम से कम अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक में लड़ चुका होगा और शिकस्त खा चुका होगा। मतलब बेशरम और बेगैरत इतने कि शर्म फिर समझ इनको फिर भी नहीं आती है। इसके बावजूद भी अब ट्रम्प जो कुछ कर रहा है, इज ए कंपल्सिव लायर, आपको पता है वो तो चीटर है, इज अ करेक्टरलेस मैन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इम्पीचमेंट हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। वो जैसे अब अपने जर्नैलों के अपोजिट आ गया, पेंटागन के अपोजिट आ गया। मुझे ये बात याद रखिएगा कि अभी आज की तारीख में, ये 2 दिन पहले की बात है, रशिया से 8 जहाज, उनके सबसे बड़े जो कार्गो प्लेन है ना, वो गए हैं, और वो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने ईरान को डिलीवर किया। आज आपने देखा एक F-35 टारगेट हुआ है। वो S-500 जो है वो केपेबल है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिवाइस करने का। S-500 इज मच एडवांस्ड देन S-400, और उसके साथ साथ उन्होंने अपना ईरान को हाइपरसोनिक रीट्रेडेड व्हीकल एक होता है वो दिया है, जो 20 मैक से लेके 22 मैक तक चलता है। और आपने देखा कि कल जो ईरान ने फायरिंग की है इजराइल के अंदर, वो उन्होंने वही हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया है। वो जो हाइपरसोनिक रिट्रेड व्हीकल उसको कहते हैं। तो बात ये है कि ये इसको सिर्फ ईरान की जंग ना समझिएगा, इसको जरा गौर कीजिएगा। रशियंस विड नेवर लाइक कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो कहीं भी अमेरिकनाइज हो। इट्स अ चोक पॉइंट। वो स्टेट ऑफ हॉर्मस को ईरान से निकलने नहीं देगा। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि अगर वो अमेरिका या किसी का उसके ऊपर कंट्रोल होता है तो वो तो फिर उसको चोक करेंगे ना रशिया को। रशिया का कितना तेल उधर से गुजरता है, चाइना का कितना देर गुजरता है। तो चाइना और रशिया का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है अदर देन द ईरान वॉर। इसलिए उन्होंने ईरान के साथ खड़े होना स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ट्रम्प जितने भी कोशिश कर ले, जो मर्जी कर ले, वो स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है ना, अब ट्रम्प ने खुद कहा था, मैंने तो नहीं कहा था ना, उसने जब इब्राहिम लिंकन के ऊपर जब हमले की तफसीलात बयान की हैं तो आपने सुनी थी जो क्या कह रहा था कि जी 100 मिसाइल फायर किए उन्होंने हमारे, और इब्राहिम लिंकन को उन्होंने अपना नुकसान पहुंचा दिया। गिरार फोर्ड के साथ क्या हुआ? अब जो खालिद के जब उसके ऊपर जो बंदे उतारना चाहते हैं, राइट सर, बिल्कुल ठीक सर, क्लोजिंग पे जा रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि वो बेचारे जो उतरेंगे वो बेचारे वापस नहीं जाएंगे। वो भी इंसान है। अमेरिकन है तो क्या हुआ, इंसान तो है, बिल्कुल सही है। तो हम तो मुसलमान वो हैं जिनको मतलब इंसान की जब वो किसी भी मजहब से ताल्लुक आता हो, उसकी अगर जान जाया हो तो हमें दुख हो। तो वो इनोसेंट वो लोग हैं जो उतरेंगे, दे विल बी इनोसेंट, दे विल बी किल्ड।
How would they drop them? राइट सर, Airdrop बिल्कुल सही सर। क्लोजिंग पे जाना है, मैं एक शॉर्ट सा कमेंट जो है वो चाहूंगा कि सर जंग के ऊपर कैसे शरीफ साहब आपका भी आ रहे, फिर मैं क्लोज देखिए करता हूं। बात बड़ी तफसील से हो गई है। मैं इस मौके पे छोटी सी एक बात करूंगा कि मौजूदा जो सूरत हाल है ये गैर मामूली सूरत हाल है ख़ित्ते की। इस पर गवर्नमेंट को तमाम जो नेशनल लेवल की लीडरशिप है उनको बुला के मुशावरत में बिल्कुल शामिल सही। करना चाहिए और मशवरे से पूरी तरह एक पेज पे सारी कौम को आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कैसर शरीफ साहब, आपका शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपका शुक्रिया। हामिद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।